निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 का बजट पेश कर दिया। बजट में सभी तबके के लिए कुछ न कुछ है। मुतवस्सित तबके के लिए बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। इनकम टैक्स के हद में इजाफा है। 12 लाख सालाना आमदनी पर टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ साथ नया इनकम टैक्स बिल पार्लियामेंट में आइंदा हफ्ते पेश किया जाएगा, जिसमें बदलाव किया जाएगा। किसानों, कारोबारियों, बुजुर्ग शहरियों समेत तमाम शोबों का इस बजट में अहाता किया गया है। 36 हयात बख्श दवाओं यानी कि लाइफ सेविंग ड्रग्स पर कस्टम ड्यूटी खत्म की गई है। 6 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। किसान क्रेडिट की हद 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई है, जबकि एमएसएमई के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। बुजुर्ग शहरियों के लिए टीडीएस की हद 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows. 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax. That is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. Tourism for employment-led growth. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list. The following measures will be taken for facilitating employment-led growth: organizing intensive skill development programs for our youth, including in institutes of hospitality management, providing mudra loans for homestays, improving ease of travel and connectivity to tourist destinations, providing performance-linked incentives to states for effective destination management, including tourist amenities, cleanliness, and marketing efforts, and introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups. तो आपने सुना किस तरह से उन्होंने इस बात की घोषणा की, इस बात का ऐलान किया कि बजट का स्लैब अब क्या होगा, कैसे छूट मिलेगी। अब आपको बताते हैं कि आम बजट की खास बातें क्या क्या हैं। मुतवस्सित तबके यानी कि जो मिडिल क्लास फैमिली है या जो कहते हैं मध्यम वर्ग है, तो मुतवस्सित तबके को राहत है। इनकम टैक्स की हद में इजाफा किया गया है। नया इनकम टैक्स कानून मुतारफ किया जाएगा। आइंदा हफ्ते ऐवान में बिल इस ताल्लुक से पेश किया जाएगा। किसानों और कारोबारियों के लिए भी ऐलान किया गया है। हयात बख्श दवाओं यानी लाइफ सेविंग ड्रग्स पर ड्यूटी खत्म कर दी गई है। उनमें से कई पर ड्यूटी बिल्कुल ही खत्म कर दी गई है और कुछ पर ड्यूटी को कम कर दिया गया है।
और वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पर अहम ऐलानात के बाद मिडिल क्लास में खुशी की लहर दौड़ गई है। आवाम इसे अब तक का सबसे बेहतरीन बजट करार दे रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने, जी हां, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी बजट की तारीफ करते हुए कहा है कि यह बजट बहुत ही शानदार है और हर तबके के लिए फायदेमंद साबित होगा। मुल्क भर में लोग इस बजट को सराह रहे हैं और हुकूमत के इस कदम का खैर मकदम कर रहे हैं। भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी और हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उसी प्रकार से देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे उस होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। इससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जो रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और टूरिज्म जो रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है, एक प्रकार से चारों तरफ रोजगार के अवसर पैदा करने वाला एक क्षेत्र को ऊर्जा देने वाला काम करेगा। बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले, जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। साथियों, इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस है, ताकि एंटरप्रेन्योर्स को, एमएसएमईज को, छोटे उद्यमियों को
मजबूती मिले और नई जॉब पैदा हो। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन से लेकर क्लीन टेक, लेदर, फुटवियर, टॉय इंडस्ट्री जैसे अनेक सेक्टर्स को विशेष समर्थन दिया गया है। लक्ष्य साफ है कि भारतीय प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में अपनी चमक बिखेर सके। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के बजट को तरक्की पसंद करार दिया है। उन्होंने कहा कि बजट को मुल्क के मुख्तलिफ तबकात ने सराहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी बजट की तारीफ करते हुए कहा कि यह मुल्क को तरक्की की नई राह पर ले जाएगा। बजट में खास तौर पर गरीबों, नौजवानों, किसानों और ख्वातीन के लिए कई अहम स्कीमों का ऐलान किया गया है, जिससे इन तबकात को बड़ा फायदा पहुंचने की उम्मीद है। और काबीना वजीर और सीनियर एनसी लीडर सकीना इत्तू ने आज पेश किए गए मरकजी बजट पर रद्द-ए-अमल दिया है। इन्होंने कहा कि बजट की कुछ तजावीज अच्छी हैं, लेकिन इन्हें जमीनी तौर पर लागू करने की जरूरत है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज यूनियन बजट पेश किया है और इस बजट में कई अनाउंसमेंट की गई है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर और मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इत्तू। 12 लाख तक की जिन इनकम है, पर्सनल इनकम, उसमें उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर हम टैक्स की बात करेंगे तो पिछले मुझे लगता है 18 के बाद सबसे ज़्यादा टैक्स लगे हुए हैं। एक गरीब के ऊपर, गरीब की जो कमर है वो टैक्स ने तोड़ी हुई है। अगर इस ये जो बजट में इनकम स्लैब जो है वो उन्होंने 12 लाख के ऊपर नहीं लगेगा, तो इस तरह अगर देखा जाएगा वो देखना पड़ेगा कि कितने लोग इससे फायदेमंद हो सकते हैं। अगर ज्यादा लोगों को फायदा मिलता है इससे तो एक अच्छी शुरुआत है। कहा गया है कि नई टूरिज्म डेस्टिनेशन, जैसे आपका अपना अहरबल जैसा एरिया है, उस तरह के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को और प्रमोट करना। नूराबाद इलाके में कई बहुत सारे एरिया जैसे पांचान पथरी है, बहुत खूबसूरत इलाका है। इन एरियाज को अगर तवज्जो दिया जाए, वरना हमारा टूरिस्ट आता है रोज, या तो बेचारा गुलमर्ग चला जाता है, या कश्मीर के लोग सोनमर्ग या पहलगाम, या कभी कभार कोई कम टूरिस्ट जो है डोमेस्टिक वो कभी कभार अहरबल चले जाते हैं, या कुछ एरियाज बड़गाम में जो है दुधपथरी। तो मुझे लगता है और ज्यादा एरियाज को इंक्लूड करना चाहिए। एक अच्छा स्टेप है, अगर उसके लिए शुरुआत की रही है, ऐलान बराए ऐलान नहीं रहना चाहिए, उसमें वाकई नीचे ग्राउंड में कुछ होना चाहिए। मेरी गुजारिश यही है, इस वक्त जो हमारी बहनें हैं वो मर्दों के बराबर है। आपका वोट भी 50% है, मर्दों का भी 50% है, लेकिन स्कीम्स तो बहुत है, इम्प्लीमेंटेशन कम है। मेरी यही गुजारिश है आपके इस प्रोग्राम के जरिए, जो हमारे वजीर आजम साहब है, 33% को लागू करे जल्दी, ना कि 27 तक इंतजार करे। अगर वो करेंगे तो उससे सही में जो बहनें वो एम्पावर हो सकती है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने टैक्स स्लैब को 12 लाख रुपए करने पर खुशी का इजहार किया। वो इस बात पर भी बहुत खुश हैं कि ज़राअत, सेहत और तालीम जैसे अहम शोबों के लिए बजट में खातिर ख्वाह रकम मुख्तस की गई है। सादिक 3 मार्च को शुरू होने वाले जम्मू कश्मीर के आइंदा बजट के बारे में भी पुरुम्मीद हैं। न्यूज़ 18 के साथ अभी जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर एमएलए जलील तनवीर सादिक। मजीद बात करते हैं। तनवीर साहब, कैसे देख रहे हैं बजट को जो आज आया? अभी बहुत जल्दी है उसके ऊपर डिस्कशन करना, लेकिन जो हमें थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि जिस तरह जो टैक्स स्लैब 12 लाख के जो मिडिल क्लास है वो एक पॉजिटिव स्टेप तो लग रहा है, लेकिन जो ड्रग्स पे आप रिबेट दे रहे हैं वो भी एक पॉजिटिव स्टेप लग रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो 50 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक्सप्लोर होगी और मेडिकल टूरिज्म की बात हुई है, तो उस 50 जो मेडिकल ये जो टूरिज्म एक्सप्लोरेशन की बात है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर उसमें एक बहुत ही फोकल पॉइंट हो, और मेडिकल टूरिज्म में भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी ये डिस्कशन इसमें आगे हो, जम्मू कश्मीर उसमें फोकस हो। सर, आज का बजट जो है इसका टेक अवे जो रहेगा, क्या हम उसके असरात देखेंगे जो अभी हमारा सेशन यहाँ स्टार्ट पता चलेगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब एक चुनिंदा सरकार है,
तो दिल्ली की जो नजरसानी कुछ अच्छी हो यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की सरकार के लिए, पता चलेगा। लेकिन इतना तो हम एश्योर करते हैं कि जो हमारा बजट होगा वो लोगों के पीपल फ्रेंडली होगा। बहुत शुक्रिया सर। आपने सुना तनवीर सादिक को। न्यूज 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज 18 JKLHH के साथ। मैं हूं विशाल। जिनको प्रधानमंत्री मोदी 5 फरवरी को जाएंगे प्रयागराज। लगभग 5 घंटे संगम नगरी में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गंगा स्नान के बाद संगम जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। महाकुंभ मेला क्षेत्र में अस्पताल और इलाज की सुविधा बढ़ाई गई। बच्चों के लिए अलग OPD, डेंटल OPD, स्त्री रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन से लेकर दूसरी कई स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। महाकुंभ में आस्था की डुबकी जारी। कल रात 8 बजे तक 1 करोड़ 82 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई है आस्था की डुबकी। महाकुंभ में अब तक 31 करोड़ 46 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके। महाकुंभ में हैप्पीनेश गुरु ने बताया कैसे रह सकते हैं प्रसन्न। न्यूज 18 से बातचीत में खोले कई राज। कहा आंतरिक प्रसन्नता यानी इनर पीस का भाव उत्पन्न करना ही उद्देश्य। महाकुंभ में विदेशियों का तांता। एक सुर में सभी ने की महाकुंभ में व्यवस्था की तारीफ। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी में पहली बार ब्रह्मश्री कुमार स्वामी को जगत गुरु की पदवी दी गई। निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने पट्टाभिषेक कराया। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने श्री अजय दास के आरोप को सिरे से नकार दिया। कहा उनकी क्या हैसियत है, वो मुझे क्या किन्नर अखाड़े से बाहर निकालेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं विशाल। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा ने मरकजी बजट की तजावीज का खैरमकदम किया है। इन्होंने 12 लाख आमदनी पर टैक्स छूट देने के फैसले का खैरमकदम किया। सत शर्मा ने कहा कि बजट तजावीज मईशत को फरोग देंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में मदद करेंगी। मेरे साथ इस वक्त हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट सत शर्मा जी। सर, न्यूज 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले जो यूनियन बजट आज पेश हुआ है उसमें कई प्रपोजल्स हैं। सबसे बड़ा प्रपोजल जो मेन है, जो आम लोगों की भी डिमांड थी, उसको पूरा किया गया है कि 12 लाख तक जो इनकम है उस पर कोई भी टैक्स नहीं होगा। क्या कहेंगे इस पर? बहुत अच्छा कदम है। सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री जी का हम लोग आभार प्रकट करना चाहते हैं। आज फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने जिस तरीके का एक बजट पेश किया है, ये बजट अपने आप में एक माइलस्टोन जो है वो सिद्ध होगा। हम लोग सोचते थे, हम लोग एज ए प्रोफेशनल आल्सो, मैं सुबह अपने प्रोफेशनल फ्रेंड से बात कर रहा था, मुझे लगता था कि 10 लाख रुपए तक की लिमिट जो है वो हो सकता है मिलेगी। लेकिन आज जिस तरीके से इस लिमिट को 12 लाख रुपए किया है, आप सोचिए कि मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए कितना बड़ा फायदा है। लोग, और मेरा तो ये मानना है कि ये फायदा उस क्लास को होने वाला है। देश में प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 80 करोड़ गरीब जनता को तो राशन उपलब्ध हो रहा है, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिलीज थी, मिडिल क्लास लोग थे, उनके लिए कहीं ना कहीं कमियां थी। मेरा मानना है कि एक बहुत अच्छा कदम है। खासतौर पर किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। किसान क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट को 3 लाख से 5 लाख पूरे देश भर में किसानों के साथ साथ जो टूरिज्म सेक्टर के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने और खासतौर पर फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा जी ने जो विषय हम सबके सामने रखा है कि पूरे भारतवर्ष को एक टूरिज्म हब बनाने की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर हमारा टूरिस्ट प्लेस तो है ही, लेकिन जम्मू खासतौर पर जो टूरिज्म के माध्यम से पिछड़ा हुआ था,
यहाँ पर हमारे यहाँ रिलीजियस टूरिज्म के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर 7 लेक्स हैं जिनको हम लोग बना सकते हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट की जा सकती है। यहाँ पर कई ऐसी जगहें हैं और जब पूरे भारतवर्ष में टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है तो ऐसे समय में हमारे जम्मू कश्मीर को भी और खासतौर पर जम्मू में, क्योंकि कश्मीर में तो ऑलरेडी टूरिस्ट आते हैं, लेकिन यहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म ही जो है इसके कारण ही यहाँ बढ़ावा है। लोग माता वैष्णो के दर्शन, देवी जी के दर्शन करने आते हैं तो वो जम्मू में भी रुकते हैं, उसके बाद कश्मीर में भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक रिलीजियस टूरिज्म के माध्यम से एक अच्छा बढ़ावा हो, मेरा एक ऐसा मानना है। और बीजेपी के सीनियर तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने बजट की तारीफ करते हुए इसे गरीब और मुतवस्सित तबके का हामी बजट करार दिया। इन्होंने वजीर खजाना निर्मला सीतारमण और वजीर आजम मोदी का शुक्रिया अदा किया। अल्ताफ ठाकुर ने बजट के 2 अहम पहलुओं पर रोशनी डाली, AI में 500 करोड़ की सरमायाकारी और यूरिया प्लांट का क़याम। कुछ देर पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है उन्होंने कई सारी सौगातें दी हैं। आज मजीद जानने की कोशिश करते हैं बीजेपी के सीनियर लीडर स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर से। ठाकुर साहब, कैसे देख रहे हैं इस बजट को जो आज आया है सामने? देखिए, बहुत अच्छा बजट है, पीपल फ्रेंडली और प्रो पीपल या प्रो पुअर बजट है। इसमें मुख्तलिफ जो सेक्टर्स है, हार्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, उनका ध्यान में रखा गया है। खासकर जो हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर है उसको भी ध्यान में रखा गया है। और एक आम आदमी जो टैक्स अदा करता, जो 7 लाख था उसको 12 लाख तक कर दिया गया। उससे भी जो मिनिमम लोग हैं उनको भी फायदा पहुंचे। और साथ साथ उसमें जो यूरिया प्लांट का भी कहा गया कि कभी यूक्रेन से हमें खाद मंगानी पड़ती थी, तो बहुत ज्यादा जरूरत थी यहाँ इंडिया को लिए, वो प्लांट भी यहाँ खोलने जा रहे हैं। अब टोटल मिला के अगर हम कहेंगे तो बहुत एक मिसाली बजट है, जिस बजट से आम लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। खासकर वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है या IA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई। एक टोटल मिला के अगर हम इस बजट पे बात करें तो एक पीपल्स फ्रेंडली बजट है, प्रो पुअर प्रो कॉमन मैन का बजट है। बहुत अच्छा बजट है, मिसाली बजट है। इसके लिए निर्मला सीतारमण को हम शुक्रिया अदा करते हैं और मोदी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आम लोगों और गरीबों का ख्याल रखकर इस बजट को बनाया। बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना बीजेपी की सीनियर लीडर कह रहे हैं कि प्रो पीपल है, फ्रेंडली बजट है। कहीं ना कहीं जो एक मध्यम वर्ग तबका था जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं उनके लिए काफी बेहतरीन है। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कपूर। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एडिशनल तर्जुमान इकबाल तिरंबू ने मौजूदा बजट पर मायूसी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि वो बजट में कश्मीर के तस्करे की भी उम्मीद कर रहे थे, खास तौर पर इसकी नुमायां दस्तकारी की सनद को देखते हुए, लेकिन सिर्फ सिक्किम और अंडमान निकोबार जैसे मकामात को देखकर मायूसी हुई, यानी उनका नाम सुनकर के, जिनका वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने जिक्र किया कि जो हमारा बजट फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करती है, इट इज वेरी गुड टू लुक एट, बट रिजल्ट्स आर नॉट गुड। इंडिया में पिछले 10 सालों में जिस मिडिल क्लास के लिए फोकस किया जाता है वो मिडिल क्लास इज गेटिंग पुअरर। उसके ऊपर इतना टैक्स बर्डन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ही हैज नो सेविंग, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि डिस्पाइट इनके इतने दावे हैं कि हमने मिडिल क्लास के लिए ये किया, टैक्स स्लैब्स कम किए, एम्प्लॉयमेंट के लिए ये किया, रिजल्ट्स आ नहीं रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स मेडिकल सीट्स एनहांस करते हैं, इंजीनियरिंग सीट्स एनहांस करते हैं, लेकिन उनके लिए जॉब कहाँ है? इस सब चीज का फायदा जो रिजल्ट है वो नहीं आ रहा है। कॉस्मेटिकली हम देखें तो ये अच्छा लगता है सुनने के लिए, लेकिन रिजल्ट वी आर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। आवर इकोनॉमी इज इन डोलड्रम्स। मैं कंट्री की इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। कहीं कहीं मुझे लगता है ये फेवर करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और डोमेस्टिकली कोई फायदा नहीं है। मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करके आपको छोटी मिसाल कश्मीर की तरफ ले जाऊंगा। आज के बजट में आसाम का नाम भी सुना हमने, बिहार का नाम भी सुना हमने, लक्षद्वीप का नाम भी सुना हमने, फिशरीज वगैरह ये, लेकिन जम्मू कश्मीर का नाम हमने कहीं नहीं सुना। हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हॉर्टिकल्चर। कंसेक्यूटिवली हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि इंपोर्ट ड्यूटी जो है फॉरेन एप्पल्स पर बढ़ाएं ताकि हमारा हॉर्टिकल्चर एप्पल जो है वो अच्छी तरह बिके, लेकिन मुसलसल हमारे रिक्वेस्ट के बावजूद कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर का नामो निशानी कहीं नहीं है, जबकि जम्मू कश्मीर पिछले 40 सालों से हैज गॉन थ्रू अनसर्टेनिटीज। यू ऑल नो देयर इज नो स्पेशल पैकेज फॉर जम्मू कश्मीर। जहां आप फिशरीज को बूस्ट करना चाहते हो, जहां आप बाकी चीजों को, हमारा यहाँ हैंडीक्राफ्ट था, इट वाज अ 5000 करोड़ इंडस्ट्री, इट हैज गॉन डाउन टू 400 करोड़। उसके लिए क्या किया है?
देयर इज नो मेंशन इन द बजट। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बात की है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने, स्टेट्स को हम 1.5 लाख करोड़ देंगे इंटरेस्ट फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। हमको कितने साल हो गए मांगते हुए कि हमें पावर प्रोजेक्ट्स खरीदने के लिए पैसे दीजिए, ये भी सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाती, लेकिन इसका कहीं नामो निशान नहीं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर सलमान सागर ने मौजूदा बजट पर मिला जुला रद्द-ए-अमल का इजहार किया। अगरचे वो टैक्स छूट में इजाफे को एक मुस्बत इकदाम के तौर पर तस्लीम करते हैं, ताहम वो महसूस करते हैं कि मजमूई तौर पर बजट तवक्कुआत से कम है। सागर ने कहा कि टैक्स छूट के अलावा कुछ भी ठोस हासिल नहीं किया गया है। सब किस तरह से देख रहे हैं आज बजट जो आया है? अभी ज़्यादा तो टिप्पणी नहीं कर सकते। कुछ है इसमें जो 12 लाख तक का जो स्लैब नहीं रहेगा टैक्स का, वो एक ठीक बात है। देन एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी कुछ लग नहीं रहा कि कोई खासा बताया गया है इस चीज़ को बजट को लेके, तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ ह्यूज एम्प्लॉयमेंट के लिए होना चाहिए था। लेकिन अभी ये बजट आज टेबल हुआ है, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने प्रपोज किया हुआ है और फाइनली इस पे डिस्कशंस होगा और पास होगा। तब तक ये कुछ प्रोसेस से गुजरेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि डिस्कशंस के दौरान, बजट डिस्कशंस के दौरान और पास होने तक जो प्रोसेस होगा उसमें जम्मू कश्मीर के भी बहुत सी चीज़ों को नज़र में रखा जाएगा और फुलफिल किया जाएगा। बहुत से ऐसे प्रोमिसेस को जो इलेक्टेड सरकार ने किए हैं और जो बीजेपी गवर्नमेंट ने भी वक्तन फवक्तन लोगों के साथ किए हुए हैं। कोशिश करेंगे कि जिस भी तरीके से जो हमारा बजट होगा वो पीपल फ्रेंडली होगा और स्टेट का पहला बजट होगा 6 साल के बाद जो स्टेट असेंबली पास करेगी और प्रेजेंट करेगी। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑलमोस्ट लाइकली वही कर रहे हैं बजट पेश, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी है, तो बहुत पीपल फ्रेंडली और जो एक्सपेक्टेशन लोगों की है उस बजट में दिखेंगी जरूर। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। मैं हूं विशाल। प्रधानमंत्री मोदी 5 फरवरी को जाएंगे प्रयागराज। लगभग 5 घंटे संगम नगरी में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गंगा स्नान के बाद संगम जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। महाकुंभ मेला क्षेत्र में अस्पताल और इलाज की सुविधा बढ़ाई गई। बच्चों के लिए अलग ओपीडी, डेंटल ओपीडी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन से लेकर दूसरी कई स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। महाकुंभ में आस्था की डुबकी जारी। कल रात 8 बजे तक 1 करोड़ 82 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई है आस्था की डुबकी। महाकुंभ में अब तक 31 करोड़ 46 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके। महाकुंभ में हैप्पीनेश गुरु ने बताया कैसे रह सकते हैं प्रसन्न। न्यूज़ 18 से बातचीत में खोले कई राज। कहा आंतरिक प्रसन्नता यानी इनर पीस का भाव उत्पन्न करना ही उद्देश्य। महाकुंभ में विदेशियों का तांता। एक सुर में सभी ने की महाकुंभ में व्यवस्था की तारीफ। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी में पहली बार ब्रह्मश्री कुमार स्वामी को जगत गुरु की पदवी दी गई। निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने पट्टाभिषेक कराया। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने श्री अजय दास के आरोप को सिरे से नकार दिया। कहा उनकी क्या हैसियत है, वो मुझे क्या किन्नर अखाड़े से बाहर निकालेंगे। महाकुंभ हादसे की जांच करने पहुंची टीम ने अधिकारियों के साथ बैठक की। घटनास्थल का जायजा लिया। अस्पताल जाकर घायलों से भी मुलाकात की। गोरखपुर से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH। मैं हूं विशाल। श्रीनगर में हाउस बोट मालिकान ने वजीर खजाना की जानिब से पार्लियामेंट में पेश किए गए बजट का खैर मकदम किया है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए मोहम्मद याकूब ने बजट से मुतालिक मजमूई ऐलानात पर खुशी का इजहार किया और कहा कि हाउस बोट मालिकान को इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा कि हाउस बोट मालिकान का मानना है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के सियाहती सनत के इस अहम शोबे को नजरअंदाज नहीं करेगी।
हमारे साथ मौजूद है इस वक्त फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन मोहम्मद याकूब। याकूब साहब, खैर मकदम है आपका। हमें बताइए कि जिस तरह से आज जो बजट पेश हुआ तो क्या उससे संतुष्ट हैं आप? सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने जो हमारे हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर है कि उन्होंने एक उम्दा आज का जो सेशन रहा वो एक उम्दा बजट उन्होंने पेश किया है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे चिंदा सेक्टर्स पकड़ लिए। मान लीजिएगा एग्रीकल्चर उन्होंने पकड़ लिया कि एग्रीकल्चर पहले हमें यूरिया बाहर से मंगवाना पड़ता था, अब वही यूरिया का प्लांट यहाँ पे हिंदुस्तान में लगेगा, तो इस तरह से हमारे जो किसान भाई हैं उनको फ़ायदा उससे पड़ेगा और सस्ते रेट में मिलेगा। जहाँ तक टूरिज़्म की बात है तो टूरिज़्म का अभी अब आपने भी देखा होगा, हम भी वॉच कर रहे थे कि कुछ टूरिज़्म के बारे में कुछ निकल आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। हाँ, एक्सपेक्टेशंस जो है नेक्स्ट सेशन का वो हाई है। उम्मीद करते हैं कि इस सेशन में जो नेक्स्ट सेशन होगा टूरिज़्म का तो उसमें हमारे हाउस बोट की जो मरम्मत के लिए लकड़ी होगी वो भी अप्रूवल हो जाएगी। दूसरी बात जो अहम बात है, जिस तरह कहा जाता है कि भाई जहाँ पे भी हम जाते हैं, अभी OTM बॉम्बे में चल रहा है, वहाँ पे आप देखिएगा हाउस बोट का ही लोगो चल रहा है। तो ये सरकार का कहना है दोनों का, जो केंद्र में है और जो रियासत में, कि हिंदुस्तान ये जो हाउस बोट है ये हेरिटेज नॉवेल्टी ऑफ कश्मीर है। इसी नॉवेल्टी को अगर इनको ज़िंदा रखना है तो फिर हमें जो पाबंदियाँ आयद की गई है वो किस तरह से की गई है वो अलग बात है, लेकिन अगर इसको ज़िंदा रखना है, इसको सिर्फ टेक्स्ट में नहीं रखना है, तो हमें सबसे पहले फिलफौरन इस हाउस बोट की मरम्मत की इजाज़त दी जाए। और जम्मू कश्मीर के आला होटलों ने मरकजी बजट का खैर मकदम किया है। मारूफ होटल मालिक भूपेश गुप्ता ने कहा है कि टैक्स स्लैब में इजाफे से मुतवस्सित खानदानों के अखराजात की सलाहियत में इजाफा होगा और इससे होटल इंडस्ट्री समेत हर शोबे को फरोग मिलेगा। बजट में हर शोबे के लिए कुछ न कुछ है जो जम्मू कश्मीर और कौम की मजबूती तरक्की को यकीनी बनाएगा। वित्त मंत्री की तरफ से 2025-2026 साल के लिए आज जो बजट है वो पेश किया गया है। मेरे साथ होटल और स्टेट, खासकर जो इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक टूरिज़्म स्टेट है और वहाँ की होटल इंडस्ट्री जो है एक टूरिज़्म का एक अहम कंपोनेंट है। और देश में भी जो एक होटल इंडस्ट्री है उसको काफ़ी आशाएं थी। कितनी आशाएं, किस हद तक उनकी मुकम्मल हुई, जानेंगे भूपेश जी किस हद तक आपकी आशाएं जो हैं वो आज मुकम्मल हुई हैं? देखिए, जो हमें उम्मीद थी बजट उससे कई गुना बेहतर निकल के आया है। अगर हम बात करें एक आम आदमी की, तो अगर नेशन बिल्डिंग की बात करें, एक आम आदमी जो मिडिल क्लास पीपल की अगर हम जब भी बात करते हैं, वो एक हमारे नेशन का बैकबोन रहता है। अगर हम उनके बारे में सोचते जाएंगे, हमारी बैकबोन स्ट्रॉन्ग रहेगी तो हम लोग भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। जो हमारे प्रावधान सैलरी टैक्स स्लैब के लिए दिया गया है वो 7-7.5 से बढ़ाकर सीधा ही 12 लाख का था। तो हमें उम्मीद है कि शायद इस वर्ष 10 लाख तक का किया जाएगा। 12 लाख का बढ़ाने का मतलब कि एक अच्छी सेविंग के लिए हम देखते हैं लोगों के सेंटिमेंट्स इससे बूस्ट होते हैं, उम्मीदें बूस्ट होती हैं, सेविंग बूस्ट होती है, एक्सपेंडिचर के लिए वो ज़्यादा सोच सकते हैं। तो एक अच्छा प्रावधान दिया। तो आपको लगता है कि जो पेइंग कैपेसिटी है वो आम लोगों की, जो मध्यम फैमिली है उसकी बढ़ेगी, तो उसका जो फ़ायदा है वो हर एक सेक्टर को पहुंचेगा, खास जो होटल इंडस्ट्री है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में काफ़ी पिलग्रिमेज टूरिज़्म से लिहाज से काफ़ी एक्टिव है और इसके साथ साथ जो यहाँ पे वैसे भी लोग जो हैं वो काफ़ी पहुँचते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे, अगर आपके पास जब भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम आती है, या तो आप उसको सेव करने की सोचेंगे या उसको खर्च करने के लिए सोचेंगे। कहीं ना कहीं हम उसको पैरेलली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब भी अगर हमें एक्स्ट्रा इनकम अगर सेव कर रहे, एक्स्ट्रा इनकम हमें बच रही है इस टैक्स स्लैब के माध्यम की तरफ से, हम अब अपने ऊपर भी खर्चने की कोशिश करेंगे, बाहर घूमने भी जाएंगे। जब हम ये चीज़ें करते हैं, हम एक जगह अपनी सेविंग को सिर्फ खर्च नहीं कर रहे हैं या सेव नहीं कर रहे, वो मल्टीपल बिजनेस में नए रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं। उसके मद्देनज़र रखते हुए अगर देखेंगे तो ये एक बड़ा वेलकम स्टेप है, सिर्फ मिडिल क्लास पीपल के लिए, जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी उन सभी के लिए। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में जो है होटल इंडस्ट्री का काफ़ी एक अहम योगदान होता है। आपको लगता है इससे एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में आप किस तरह से एक रेवोल्यूशन देखते हैं, और जो एक विकसित भारत का सपना है 2047 तक, उसको कहाँ देखते हैं आप? देखिए, इस बजट के अंदर काफ़ी सारे प्रावधान किए हैं। जैसे अगर हम MSME की बात करें, उनके लिए काफ़ी इंसेंटिव्स के प्रोविजंस रखे गए हैं। अगर हम फंड की बात करें, स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ का फंड का वहाँ प्रावधान रखा गया है। वुमेन सेक्टर SC/ST की बात करें कि 5 लाख वुमेंस के लिए 2 करोड़ तक के लोन की प्रावधान किए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की बात की गई है। इसी तरह काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे रखे, तो रोज़गार के लिए आपको करने की इच्छा होनी चाहिए, रोज़गार की कोई कमी नहीं है। तो ये बहुत जो ऐतिहासिक जो है आज एक फैसला लिया गया है, जो 12 लाख की स्लैब की गई है। इससे जो पेइंग कैपेसिटी है जो वो लोगों की बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर करने की जो एक कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, उससे फ़ायदा सभी सेक्टर्स को मिलने वाला है। कैमरामैन चांद के साथ राजन भाई, न्यूज़ 18 जम्मू।
और जम्मू में न्यूज 18 से बात करते हुए केसी ग्रुप के शिवांग महाजन ने मरकजी बजट में सयाहत के शोबे को मिलने वाले तवज्जो का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुल्क भर में 22 नए सयाहती मकामात को तरक्की देने का ऐलान किया है और उम्मीद है कि इसका फायदा जम्मू कश्मीर के गैर दरियाफ्तशुदा सयाहती इलाकों को भी मिलेगा। माहिरीन का मानना है कि ये इकदाम सयाहत के शोबे को फरोग देगा और मकामी मईशत को भी मुस्तहकम करेगा। रेनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट और केसी ग्रुप के से हमारे साथ शिवांग जी हैं। शिवांग जी, आप इस बजट को कैसे देखते हैं? टूरिज्म के लिहाज से आपको क्या इसमें हाईलाइट दिखी तो आपको लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित जो विकसित भारत का जो हमारा लक्ष्य है आज़ादी के 100 साल के पर्व में, मैं समझता हूँ टूरिज्म उसका काफ़ी एक बैकबोन है। और जो 22 नई डेस्टिनेशन जो सरकार ने बोला न्यू डेस्टिनेशंस, मैं समझता हूँ हमारी अपेक्षा ये है कि उसमें जम्मू की भी डेस्टिनेशंस को प्रमोट किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि बहुत पोटेंशियल है। अगर आप देखें कि डोडा, भदरवा, पटनी टॉप, बनी, सरथल, ये इलाके अनएक्सप्लोर्ड हैं। और सरकार अगर 22 डेस्टिनेशंस जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ उन्होंने ऐलान किया है उनको डेवलप करेंगे, मैं समझता हूँ कि जम्मू के व्यापारी की पुकार ये है कि वो डेस्टिनेशंस प्रमोट हो ताकि हमारा जो टूरिज्म जो है वो और बढ़े। जो एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है जो जम्मू कश्मीर को बनाना चाहती है गवर्नमेंट, यहाँ की गवर्नमेंट, उस दिशा में आपको क्या लगता है किस हद तक कदम उठा पाए? देखिए, आप समझिए कि हमारे रियासत जम्मू कश्मीर की जो मूलभूत इकॉनमी की है वो एग्रीकल्चर, टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग भी, ये 4 सेक्टर्स जो हैं हमारे। तो मैं समझता हूँ कि किसान क्रेडिट स्कीम का जो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर को बूस्ट मिलता है इससे कि किसान क्रेडिट स्कीम हर साल हम देख रहे हैं कि उसका जो एम्बिट है वो बढ़ता है। ओवरऑल देखा जाए एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को बढ़ाने की बात की गई है। जैसे पल्सेस को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की काफ़ी आम आदमी की एक पुकार थी कि पल्सेस का रेट काफ़ी, दालों का रेट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा था। गवर्नमेंट ने कुछ प्रावधान किए हैं कि पल्सेस के रेट को कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा अगर आप देखें तो 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी हटाई गई है, जिसमें आप देखें कि कैंसर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है और उसका इलाज और उसकी दवाई बहुत महंगी है। तो सरकार का निरंतर प्रयास है कि उसको हम घटाएं और मतलब उससे विजन अच्छा है उनका कि मेडिकल एक्सपेंसेस लोगों के कम करने की बात की गई है। तो शिवांग जी, जिनका कहना है कि टूरिज्म सेक्टर के लिहाज से जो 22 नए जो डेस्टिनेशंस बनाने की बात की गई है देश में, उसमें जम्मू कश्मीर के भी ऐसे इलाके हैं जिन पे अभी तक ध्यान नहीं दिया गया, उस पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ की इकनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। कैमरामैन चांद के साथ राजन भाई, न्यूज़ 18 जम्मू। और मरकजी बजट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए एसोचैम के चेयरमैन मानिक बत्रा ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह बजट विकसित भारत को यकीनी बनाने के लिए एक मजबूत बुनियाद रखता है। मानिक ने आज जम्मू में न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि यह बजट वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हर शोबे की तरक्की के विजन को जाहिर करता है। एसोचैम जेएन के मानिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। मानिक जी, आप इस बजट को कैसे देखते हैं जो अब तक सामने आया है? क्या इसमें पॉजिटिव आप देखते हैं? देखें, अगर अभी तक जो बजट हमारे सामने पेश हुआ है, अगर हम देखें तो काफ़ी पॉजिटिव बजट है, फ्यूचर आउटलुक के साथ है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो एक ड्रीम है उसके बिल्कुल अलाइंड है उसके साथ। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर काफ़ी फोकस है, मखाना बोर्ड बनाने की बात की गई है। मखाना काफ़ी एक्सपोर्ट होता है, इंडिया से ग्लोबली जाता है काफ़ी। और मेक इन इंडिया को स्ट्रेंथन करने के लिए जो ईवीज़ हैं और जो सोलर बैटरीज़ हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाने की बात की गई है इंडिया में। अदर देन दैट, अगर मैं एमएसएमई सेक्टर की बात करूं, एमएसएमई ऑलमोस्ट 36% कंट्रीब्यूटर है टू द जीडीपी, 47% कंट्रीब्यूटर टू एक्सपोर्ट्स। 5.5 करोड़ के आसपास एमएसएमईज रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 7.5 करोड़ लोग एम्प्लॉयड हैं। सो एमएसएमई को जो एक्सेस टू फाइनेंस दिया गया है उसमें बढ़ोतरी की गई है। और जो माइक्रो यूनिट्स हैं एमएसएमई में, उनके लिए एक स्पेशल 10 लाख यूनिट्स के लिए एक स्पेशल क्रेडिट कार्ड निकाला जाएगा, किसान क्रेडिट कार्ड की तरह, जिसकी 5 लाख तक की लोन लिमिट रहेगी। किसान क्रेडिट कार्ड की भी लोन लिमिट 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है। 5 लाख विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो SC ST कैटेगरी से हैं उनके लिए लोन के प्रावधान रखे गए हैं, अप टू 2 करोड़। स्किलिंग पे फोकस किया गया है, AI पे फोकस किया गया है। तो अभी तक जो बजट सामने आ रहा है काफ़ी अच्छा है। मानिक जी, जो कि एक सपना है 2047 तक विकसित भारत की जो है हम एक पिक्चर देखते हैं, आपको क्या ये बजट उसी दिशा में एक कदम दिखता है? देखिए, नींव अगर हम 2047 की बात करते हैं तो नींव अभी हमें इन वर्षों में रखनी पड़ेगी। तो ये बजट उस तरफ जाता हुआ दिखता है, बिकॉज ये PM गति शक्ति में भी काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद जैसे अभी हम सुन रहे थे कि जो लॉजिस्टिक्स है, जो एयर कार्गो की वेयर हाउसिंग है, उसमें हमारे पेरिशेबल्स के लिए भी कुछ प्रावधान रखे गए हैं, क्योंकि इंडिया काफ़ी बड़ा हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर एक्सपोर्टर है, उसके प्रावधान रखे गए हैं। अदर देन दैट, मैं देख रहा था कि फिशरीज़ जो हमारा 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वर्ल्ड का, 60,000 करोड़ का है, तो फिशरीज़ को भी बढ़ोतरी देने के लिए
उसमें भी प्रावधान रखे गए हैं कि उसको बढ़ाया जाए, और जो फूड सिक्योरिटी की तरफ भी फोकस किया गया है, जो पल्सेस और उन चीज़ों के ऊपर टच किया गया है, उस पर भी फोकस है। 3 सेक्टर ऐसे हैं जो कि काफ़ी अहम होने वाले हैं विकसित भारत में। उसमें है युवा शक्ति है, और साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर है, और महिला शक्ति है। इन तीनों के लिए क्या देखते हैं आप? देखिए, महिला शक्ति के लिए जैसे मैंने बात की कि 10 लाख जो 5 लाख SC/ST महिलाएं एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए प्रावधान रखा गया अप टू 2 करोड़ के लोन का। अगर युवा की बात करें तो फंड ऑफ फंड्स की बात की गई है स्टार्टअप्स में, जो 10,000 करोड़ का एक और प्रोविज़न दिया गया है फंड ऑफ फंड्स में। और स्किलिंग और यही सब चीज़ें हैं जो हमें आगे लेके जाएंगी, और MSME एक बैकबोन है, और MSME को भी फोकस एरिया में रखा गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं जो ये विकसित भारत का जो सपना है, उसी दिशा में, उसी कड़ी में उसकी एक कहेंगे एक प्लंथ जो है आज रखी गई है, ये कहना है एसोचैम JNK चैप्टर के जो हेड है मानिक का। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। और मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट और मेंबर एसोचैम आदित्य सुरेंद्र ने इस बजट को हुकूमत का मास्टर स्ट्रोक करार दिया है। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए आदित्य ने कहा कि हुकूमत ने टैक्स स्लैब को 12 लाख तक बढ़ाया है, जिससे एक मुतवस्सित खानदान को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। मेरे साथ आदित्य हैं, और जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और एसोचैम JNK के मेंबर भी हैं। सर, किस तरह से देखते हैं इस बजट को? सर, व्हाट ए मास्टर स्ट्रोक बजट। एक मिडिल क्लास आदमी की जो एक एक्सपेक्टेशन थी उसको पूरा किया गया इस बजट में। 12 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं, बहुत देर से डिमांड थी, और गवर्नमेंट ने ये करके ऐसा कह दिया कि एक मिडिल क्लास आदमी साल का जिसकी 12 लाख रुपए की इनकम है वो 70,000 रुपये तक का इनकम टैक्स सेव कर पाएगा। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स के लिए भी जो FD पे इंटरेस्ट 40,000 था, उसकी लिमिट बढ़ा के 1 लाख रुपये कर दी है। इसके साथ साथ जो अपनी ITR बीच में फाइल करना भूल जाता था, उसमें भी ITR U की लिमिट 2 से 4 साल कर दी गई है। MSMEs को सपोर्ट करने के लिए MSMEs की जो लिमिट्स है, टर्नओवर है, उसको भी बढ़ा दिया गया ताकि MSME जो एक बैकबोन है हमारे देश का, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बहुत नया सब्जेक्ट है, उसको भी उन्होंने अल्टीमेटली उसके लिए भी एक अलग से फंड निकाल रखा है। तो ओवरऑल ये बजट बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, और एक मिडिल क्लास के लिए एक सबसे सपोर्टिव बजट है। तो सबसे बड़ी जो इसमें हाईलाइट आपने बताया कि 12 लाख का जो स्लैब कर दिया गया है, उसके अलावा यूथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको क्या लगता है इसमें? सर, इस बजट में ओवरऑल सारे ही सब्जेक्ट्स को कवर किया। अगर हम बात करें मेडिकल में, तो PG मेडिकल की सीट्स भी जो है बढ़ाई गई हैं, और कॉर्पोरेट्स को भी इंसेंटिव देने के लिए उनको कहा कि अगर आप न्यूज़ जो नए IIM वगैरह से जो बच्चे हैं उनको अगर अपने वहाँ पे ट्रेनिंग देंगे, इंटर्नशिप देंगे, तो उसको भी उन्होंने इस बजट में कवर किया गया है। ओवरऑल ये बजट में सारे ही सेक्टर्स कवर किए गए हैं। ITR U की लिमिट होती थी कि कोई अपनी जो ITR है वो 2 साल तक फाइल कर सकता है, जो उसकी छूट गई हो, उसको उन्होंने लिमिट को बढ़ा के 4 साल कर दिया गया। बहुत बार क्या होता है, किसी को ITR बैंक में लोन लेने के लिए या कभी फॉरेन जाने के लिए ITR मांगी जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, देखा जाता है कि उसने ITR फाइल नहीं की होती। तो ITR U की लिमिट बढ़ाने से क्या होगा कि ऐसे लोगों का भी एक विंडो खुल जाएगी। तो ओवरऑल जो बजट है वो सबके लिए है, और जो सबसे ज़्यादा बड़ी हाईलाइट है वो है 12 लाख का जो स्लैब किया गया है टैक्सेस का, उससे एक आम जो मिडिल क्लास है उसको 70,000 रुपये का फ़ायदा होने वाला है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। सामाजिक कारकुन और किसान इंतखाब आलम ने कहा है कि बजट में तकरीबन बड़े पहलुओं का अहाता किया गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों को बजट से बहुत सी तक़वात वाबस्ता हैं। आलम ने कहा है कि उम्मीद है कि वज़ीर आज़म बागबानी के शोबे से मुताल्लिक़ तमाम मसाइल को हल करेंगे। मरकजी सरकार की जानिब से ऐवान में बजट पेश किया गया, वज़ीर ख़जाना ने बजट पेश किया, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया ज़ोहर साहब। जहाँ तक इससे पहले भी मैंने इसी चैनल के वसादत से आपकी बात की थी कि काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को, और कुछ हद तक जहाँ तक आज हमने सुना कि जो हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है कि उन्होंने किसी हद तक एक बिग रिलीफ दिया है। हम जहाँ तक मुलाजिमिन की बात करें, किसानों की बात करें, और जहाँ तक ओवरऑल जो हमारे जो जितने भी तबका जाता है, तो कुछ किसी हद तक रिलीफ मिला है। अगर मैं मुलाजिमिन की बात करूँ, हमें जो हमारी टैक्स स्लैब थी, टैक्स रिलैक्सेशन थी, टैक्स रिबेट था, वो 7 से 12 लाख किया गया। खुश आइंदा कदम है किसानों के लिए। जो हमें एक एग्रीकल्चर लोन मिलता है KCC के हवाले से, वो अभी तक 3 लाख तक मौजूद था, उसको 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। वो भी एक अच्छा खासा इक़दाम है, कदम है। इसके साथ साथ जो मेन जो मुद्दा है यहाँ का जम्मू कश्मीर का, बेरोजगारी और नौजवान जो है, नौजवान तबका, उन्हें कहीं ना कहीं जो है एंगेज करने की जरूरत है। ज़ोहर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम।
और फ्रूट ग्रोअर्स एसोसिएशन कुलगाम के सदर GM बांडे ने बजट का खैरमकदम किया है और कहा है कि ज़राई शोबे से मुतालिक बहुत से मसाइल हैं। उन्होंने कहा कि KCC कर्ज में इजाफा, खाद की तैयारी एक खुशाइंद कदम है। सरकार के हम बहुत मशकूर हैं जिन्होंने जिम्मेदारों के लिए कुछ ऐसे इकदाम उठाए हैं जो काबिल तारीफ हैं। खासकर जो इन्होंने कहा कि जिम्मेदारों के लिए खाद जो मुल्क में ही अब तैयार हो जाएगी, उसके लिए हम बहुत मशकूर हैं। और दूसरी तरफ जो किसी स्कीम के लिए इन्होंने 3 लाख रुपए रखे थे, अब 5 लाख बढ़ाकर, उसके लिए भी हम बहुत मशकूर हैं। हम मरकजी सरकार के ऐसे इकदामों की तारीफ कर रहे हैं, मगर यहाँ खासकर हार्टिकल्चर सेक्टर जो है वादी कश्मीर में, तो उसके लिए अभी कोई इंतजाम नहीं किया गया है। हमने पहले ही मरकजी सरकार से एक गुजारिश की थी कि यहाँ पर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को लागू किया जाए, खासकर कश्मीर के ग्रोअरों को बेनिफिट मिलेगा। जिस तरह इनने KYC स्कीम के तहत मतलब ये स्कीम लागू की है, तो वो मशकूर हैं उसके लिए। या खाद तैयार करने या लोन बढ़ाने के लिए इकदाम जो उठाए हैं, हम उसके लिए बहुत मशकूर हैं मरकजी सरकार के। तो हमें उम्मीद है कि ये ऐसे कदम बार बार उठाएंगे ताकि ग्रोअरों को बेनिफिट मिलेगा। मगर साथ में यही कहेंगे कि कुछ ऐसी स्कीमें हैं, खासकर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जो एक जिम्मेदार के लिए बहुत जरूरी है, उसको लागू किया जाए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 5 फरवरी को जाएंगे प्रयागराज। लगभग 5 घंटे संगम नगरी में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गंगा स्नान के बाद संगम जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। महाकुंभ मेला क्षेत्र में अस्पताल और इलाज की सुविधा बढ़ाई गई। बच्चों के लिए अलग OPD, डेंटल OPD, स्त्री रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन से लेकर दूसरी कई स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। महाकुंभ में आस्था की डुबकी जारी। कल रात 8 बजे तक 1 करोड़ 82 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई है आस्था की डुबकी। महाकुंभ में अब तक 31 करोड़ 46 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके। महाकुंभ में हैप्पीनेश गुरु ने बताया कैसे रह सकते हैं प्रसन्न। न्यूज़ 18 से बातचीत में खोले कई राज। कहा आंतरिक प्रसन्नता यानी इनर पीस का भाव उत्पन्न करना ही उद्देश्य। महाकुंभ में विदेशियों का तांता एक सुर में। सभी ने की महाकुंभ में व्यवस्था की तारीफ। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी में पहली बार ब्रह्मश्री कुमार स्वामी को जगत गुरु की पदवी दी गई। और वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। सब जिला त्राल में भी आज सुबह बर्फबारी हुई। इससे लोगों ने काफ़ी हद तक राहत की सांस ली है। अगरचे मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है, ताहम बालाई इलाकों में अच्छी बर्फबारी हुई है। लोगों ने बताया कि मुसलसल खुश्क साली की वजह से कुदरती चश्मे और नदी नाले सूख गए थे। ये जो बर्फबारी हुई है, आपको पता ही है कि आज कई इलाकों से यहाँ खुश्क साली थी। नदी नालों और चश्मे का पानी पीने तक भी नहीं रहा था। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि कल जो बर्फबारी हुई इससे बहुत आवाम खुश है। आवाम के चेहरे पर बहुत खुशी की लहर दौड़ गई है और इससे किसान भी खुश है और इसे उम्मीद है कि इस बर्फबारी से हमें पीने का पानी भी अच्छी तरह से मुहैया होगा और ये खुश्क साली जो है इसमें भी थोड़ी कमी आ जाएगी। तमिस खुदायस हमूद यथ मन तम त्रो बारिश यम योकुन गोस अल्लाह ताला रहम यह कर दागो कबूल शीन पे खुशक सारी कुदरन गोचर चाव आब गो नागन खत्म नलकन आब कहें कुछ कस्म वनकस जबरदस्त मुश्किल कशन सिर्फ ज्यादा त्रालस मज तो अल्लाह ताला बोज आज खबर कौन दागो कबूल आज शीन तो रूद तो खुशक सारी गई आसमान जमीन फर्क। वादी कश्मीर के साथ साथ जनूबी कश्मीर के सब ज़िला त्राल में भी आज बर्फ़बारी हुई है। अगर हम मैदानी इलाकों की बात करेंगे, मैदानी इलाकों में 1 से 1.5 इंच तक जो बर्फ़ है वो रिकॉर्ड की गई है। अगर हम देहाती इलाकों की बात करेंगे, देहाती इलाकों में 2 से 3 इंच जो है बर्फ़ रिकॉर्ड की गई है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। यहाँ कई जंगलों में खुश्क साली की वजह से आग भी लग गई थी, जिस पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने एक एडवाइजरी भी जारी की थी कि वो लोग जंगलों की तरफ न जाएँ। तो ये जो बर्फ़बारी हुई है इससे लोगों ने काफ़ी
काफ़ी हद तक जो है राहत की सांस ली है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए मैं त्राल से सईद मंजूर। और जिला कुलगाम में ताज़ा बर्फबारी शुरू हो गई है। जिला कुलगाम के बालाई इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर 1 फुट से ज्यादा बर्फ जमा हो गई है। इंतजामिया ने भी तैयारियां की हैं और एडवाइजरी जारी की गई है। डीसी कुलगाम अथर आमिर खान की हिदायत पर एसडीएम नूराबाद बशीरुल हसन, तहसीलदार और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के महकमे ने बर्फबारी वाले इलाकों का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। शाम से ही बारिश पहले स्टार्ट हुई, तो उसके बाद बर्फबारी अपर रीच में बर्फबारी तकरीबन 1 फुट के करीब हुई है। अगर आप देखोगे जो हमारी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है अहरबल में, वहाँ भी तकरीबन 1 फुट के करीब बर्फ़ जमा हुई है। तो इस वक्त हमारे साथ बिल्कुल तहसीलदार साहब भी मेरे साथ है, हमारे मैकेनिकल को जो हेड है यहाँ वो भी हमारे साथ है, पीएमजीएसवाई के जो एडबली साहब है वो भी इस वक्त लगे हैं। तो बिल्कुल डीसी साहब की सदारत में इस वक्त पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लगी है और हमारे तकरीबन मोर देन 95% जो P1 रोड ऑलरेडी क्लियर हुए हैं। तो जो P2 रोड से वो भी तकरीबन 70% के करीब हमारे क्लियर हुए, क्योंकि अपर रीच में आपने देखा तकरीबन 1 फुट के करीब बर्फ है और ये अशद ज़रूरत थी। इस वक्त आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इस साल जो हमें एक्सपेक्टेशन थे कि चलाई कलान में अच्छी बर्फबारी होगी, लेकिन चलाई कलान के पहले ही हफ्ते में आपने देखा कि उसके बाद बिल्कुल आज तक कोई बर्फबारी या कोई बारिश नहीं हुई। तो ये एक खुशाइन बात है, खासकर जो हमारा एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर सेक्टर है उनके लिए। और इससे जो हमारा जो पानी का जो एक वाटर टेबल जो बिल्कुल ज़मीन में बिल्कुल ख़त्म हुआ था, तो उसमें भी भरपाई होगी और लोगों को इंशाल्लाह इससे बहुत ही राहत मिलेगी। और कुपवाड़ा जिले के मैदानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। सरहदी इलाकों का राब्ता जिला सदर मकाम से मुनक़ता हो गया है। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करना, केरन और मच्छल के सड़क राब्ते आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिए गए हैं। काबिल जिक्र है कि वादी के बेशतर दीगर इलाकों की तरह ही जिला कुपवाड़ा में भी आज ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। नाजरीन, सर्दियों के बादशाह यानी चले कलान के रुखसत होने के साथ ही कश्मीर के साथ साथ कुपवाड़ा ज़िले में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैदानी इलाकों के साथ साथ सरहदी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। उधर कुपवाड़ा ज़िले के सरहदी इलाकों का राब्ता ज़िला सदर मुकाम से एक बार फिर मुनक़ता हो चुका है। करना, केरन और मत्सल के सड़क राब्तों को आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर बर्फबारी की वजह से हादसा पेश आते हैं। इंतजामिया ने फैसला लिया है कि बर्फबारी के पेश नज़र तीनों सड़क राब्तों को आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया जाए। लेकिन यहाँ ये ख़ास बात है कि इस बार चले कलान में खासी बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन चले कलान के रुखसत होने के साथ ही कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि चले कलान के बाद जो ही बर्फबारी शुरू हो जाती है तो यहाँ के किसानों या मालिकानी बागात के लिए कोई बड़ी राहत नहीं होती है, क्योंकि माहिरीन का मानना है कि जबकि चले कलान में अच्छी और ख़ासी बर्फबारी हो जाती है तो वो यहाँ के मालिकानी बागात और किसानों के लिए राहत का पैगाम लाती है। लेकिन आज एक बार फिर लोग काफ़ी खुश हैं कि बर्फबारी हुई, क्योंकि इससे एक बार फिर मालिकानी बागात और किसानों के चेहरों पे खुशी लौट आई है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन